सो हम फाइनली ले पहुंच चुके हैं। आज डेट है 12 अप्रैल 2024। बर्फ़ कई हद तक पिघल चुकी है और चांसेस बहुत कम है स्नो लेपर्ड के। हमने पूरी रात काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि कहाँ हम कैसे देख सकते हैं। फिर सुबह हमें 11 बजे ये न्यूज़ मिली। We are in Leh currently, and there's a kill by snow leopard approximately 40 kilometers from here, that is on the east of Leh. It will take approximately 1 hour. We're just waiting for the right information where exactly the kill is and how to trek to that mountain. Let's hope for the best if we get a good shot of snow leopards today. सो अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 और हम निकल पड़े हैं स्नो लेपर्ड की तलाश में। लोकल्स के थ्रू जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे वो हेमिस नेशनल पार्क के मिले हैं, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है। इसकी हाइट जो है वो 3000 मीटर से 5000 मीटर तक है और ये लद्दाख रीजन और जम्मू एंड कश्मीर रीजन दोनों में ये पड़ता है। और दुनिया में स्नो लेपर्ड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी नेशनल पार्क पे पाई जाती है। यहाँ लद्दाख के अंदर में स्नो लेपर्ड स्पॉट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है। सो पहाड़ पे जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। जो भी स्नो लेपर्ड आप यहाँ पे देखते हैं वो मोनोकुलर या बड़े लेंसेज या बाइनोकुलर्स, इन्हीं के थ्रू आप यहाँ पे देखते हैं। स्पीति में ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि स्पीति ऑल्टीट्यूड भी लो है स्पीति का, एंड वो एक छोटी वैली है। सो वहाँ काफ़ी क्लोज इनकाउंटर्स हुए हैं आज तक स्नो लेपर्ड के। हम आज इरफान के साथ में निकले हैं हेमिस नेशनल पार्क की तरफ। इरफान यहाँ के लोकल स्पॉटर हैं जो सालों से स्नो लेपर्ड की स्पॉटिंग कर रहे हैं। तो आज जानते हैं हम इरफान के थ्रू उनकी कोई स्नो लेपर्ड की कहानी। So what was your craziest sighting? I mean, of course, the first sighting, the first time when you see a snow leopard. Yeah. So that's always something special, yeah. I mean, it was a sighting of very close sighting, 50 meters, 80 meters maximum. Okay. Where we got the, news. I mean, we were in Ule. It's a story of 7-8 years ago, back in 2016. Okay. Where we were leading a group. And then on the day on which the kill happened, we didn't saw it because it was late night, right? Okay. And then what happens is whenever the snow leopard makes a kill, it will be around, Around, that comes carcass to eat for the it, next 2-3 days, right? Yeah. Unless and until it finishes everything, only then the leopard moves on. So we have to go, and snow leopard are nocturnal in nature. They only do their movement in the morning and in the evening, and the entire day they will sleep. Yeah, so Okay. they have this behavior, right? So me and my friend were assigned to go early in the morning, the first light 5:30, to go and check, if the leopard is right at the carcass or not, where the kill was made. And then it's a walk of 10-15 minutes from the lodge. So me and my friend went early in the morning around this time, 5:36. And then the moment, because the kill was, so we were a little high. The kill was down in the valley, but very close, right? So Okay. you only get to see the kill when you get at the extreme edge of that, Okay. cliff, right? So the moment we, arrived there, the leopard was right on the kill, and then, that eye contact, Oh. yeah, for the first time. I mean, even, when I close my eyes now, when a snow leopard thing, comes, a conversation like that, I close my eyes, that moment is right yes, yes, imprinted, in my mind. That 15 second, 10-15 second of the eye contact that we had on that day. I don't know, it was something, you got enlightened, yeah? Yeah. A feeling like that, yeah? Where, wow, beautiful, man. So that was one of the most, the first amazing. and one of the First, most beautiful sightings of a leopard that I had. And after that, so there was a mountain right in front of it. So snow leopard, don't like humans to come that close, right? So our presence made it,
move around, right? And then there was a peak mountain right in front of us, and then there was snow, not that deep, but then like there was snow, and then the way the snow leopard walked, like all the way to the peak of like that mountain in a zigzag manner. It would take a human like 2.5 hours to climb it. It made it in like less than 1 minute. Yeah, and then every 10 steps, like it was going up, looking at us again, going up, looking at us. So me and my friend didn't spoke a single word. With that silence, you can feel that silence. When that sighting was happening right in front of our eyes. So yes, brother, that was the most magical sighting I ever had in my life. सो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ 10 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम अपनी ट्रैक की शुरुआत करेंगे। सो फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं। इसी रोड के पैरेलल एक रिवर है और उस रिवर के साइड में ही गांव वालों ने बताया कि वहाँ पे किल हुआ है एंड स्नो लेपर्ड उसे खाने के लिए यहाँ बार बार आ रहा है। ऑलरेडी कुछ फोटोग्राफर्स एंड स्पॉटर्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। टूरिस्ट को लेके भी काफ़ी स्पॉटर्स आए हैं। हम ऊपर चलने की अब तैयारी करेंगे। काफ़ी भारी है क्योंकि बहुत सारा सामान है हमारे पास में, ट्राइपॉड एंड बिग लेंसेज, कैमरास, एवरीथिंग विद अस एंड जैकेट टू, क्योंकि थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। सो स्नो लेपर्ड ठीक हमारे सामने है बट उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जो किल है वो उस किल के पीछे सो रहा है। सो हम बहुत देर तक उसके मूवमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर हो चुकी है हमें, वेट है बस उसके उठने का। और ये इसने करवट बदल ली और ये अभी बिल्कुल फ्रंट से हमें देख रहा है। हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम इस स्नो लेपर्ड को विदाउट एनी लेंस एंड विदाउट एनी डिजिटल इक्विपमेंट हम इसको डायरेक्टली नेकेड आई से हम देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली हमसे 50-60 मीटर्स हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो किल किया हुआ है काऊ का जस्ट इसके पीछे। ये क्लोजर विजन है बट आप इसको नेकेड आई से भी देख पा रहे हैं। ये हमारी पहली साइटिंग है स्नो लेपर्ड की। यहाँ काफ़ी लोग सालों से आ रहे हैं। हम यहाँ पे फोटोग्राफर से मिले जिन्हें 7 साल हो गए हैं और उन्होंने हमेशा स्नो लेपर्ड को मोनोकुलर या बाइनोकुलर से बहुत दूर पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ देखा है। और उनकी भी ये फर्स्ट साइटिंग है जिसमें इतना क्लोज एनकाउंटर लाइक हार्डली 70 मीटर्स पे स्नो लेपर्ड हमारे सामने है। बस हम वेट कर रहे हैं इसके उठने का। बहुत देर हो चुकी है। अभी थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं इसके उठने के क्योंकि ये बर्ड मैकपाई इधर आ गई है और इस मैकपाई की भी पूरी नज़र इस किल के ऊपर में है। सो ये स्नो लेपर्ड नहीं चाहता इसे किल के पास किसी को भी आने दे।
अभी उठने का है इसका टाइम, बिकॉज ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, अंधेरा चालू हो चुका है, ठंड भी बढ़ चुकी है। सो हम वेट करेंगे लास्ट मोमेंट तक, बिल्कुल अंधेरे होने से पहले तक ये यहाँ से उठ जाए, और हम कोशिश करेंगे फिर सुबह आके जल्दी इसको फिर से यहीं पे स्पॉट करें, वापस इसको कैप्चर करें, क्योंकि अभी इसके चांसेस उठने के मुश्किल हैं, क्योंकि इसका पेट देखे पूरा फुल है। सो ये यहीं रेस्ट करेगा, क्योंकि शिकार को छोड़ के जाना, और अभी इसको एक ही दिन हुआ है, तो अभी ये शिकार पूरा भरा हुआ है अभी इसके लिए। उसको वुल्फ से, फॉक्स से, इन सारे जानवरों से इसको प्रोटेक्ट करना है जब तक ये इसको पूरा लास्ट तक नहीं छोड़े, और लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएगा तब ये इसको मैगपाई और दूसरे बर्ड्स हैं, वल्चर्स हैं, उनके लिए ये इसको छोड़ देगा। सो इसी के साथ साथ जब तक हम स्नो लेपर्ड के उठने का वेट कर रहे थे, हमने यहाँ पे हिमालयन ब्लू शीप भी स्पॉट करी। सो मोनोकुलर से आप देख सकते हैं उसको, ये ऊपर काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर, मोनोकुलर से भी बहुत मुश्किल हुई हमें इसको स्पॉट करने में, बट ये पूरा ग्रुप है। फाइनली हमें बहुत ही अच्छी पोजीशन मिली फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए। मेरा स्नो लेपर्ड से डायरेक्ट आई कांटेक्ट भी हुआ। शाम ढलने लगी है और ठंड बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि हम एक बिल्कुल वैली के बीच में, जिसमें दोनों तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ स्नो लेपर्ड है और एक तरफ हम। सो हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है अब। सो फाइनली रात हो चुकी है और इसके उठने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। हमने बहुत देर वेट किया, 2 घंटा हमने इसको ऑब्ज़र्व किया कि अब उठेगा और हम इसका कुछ बढ़िया सा शॉट ले पाएंगे, बट आज तो कोई लक नहीं इसके मूवमेंट का। बट कल देखते हैं, कल हम सुबह फिर से तैयारी करके अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हम ट्राई करेंगे यहाँ पे आने का। और हम सुबह फिर 6 बजे दोबारा इसी लोकेशन पर आए, और जो हमने देखा
वो वंस इन अ लाइफ टाइम में होने वाली साइटिंग थी। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, या आप आपके स्क्रीन पे भी देख सकते हैं।